Good morning students. In previous video class what we have learned chapter number 2 is definitions and we have completed exercise 2.1 we have completed. Now we are moving on to the some next topic, that is properties of whole numbers. So what is the properties of whole numbers we will see now. So listen carefully. So first of all, what is the closure property? What is that closure property? And again under closure property you have to see about addition, subtraction, multiplication and division. ये सारे आपको देखने हैं. तो first closure property under addition. What we will see under addition. What is a closure property? यानी closure means whole number लिया तो उसका close है same number आना, तो close same. तो इसके लिए इसका नाम दिया गया है क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन. अंडर एडिशन मींस यानी आपको टू होल नंबर्स लेने हैं. होल नंबर्स है कुछ भी ले लो, बहुत सारे होल नंबर्स हैं. 2 इज अ होल नंबर, 3 इज अ होल नंबर ले लो एंड ऐड दीस टू नंबर्स. 2 + 3 हाउ मच? 5. सो 5 इज अ होल नंबर. Yes, that means यहाँ पर क्या हुआ? When two whole numbers are added, whatever the result you will get, that is also whole number. यानी a plus b, यानी a is a whole number, b is also whole number equal to c. Whatever the result you will get, so that is also whole number. यहाँ पर हम लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2 + 3 that is equals to 5. Clear? 2 is a whole number, 3 is also whole number and 5 is also whole number. Therefore whole numbers, this closure property under addition, it is satisfied. Okay, ये यहाँ पर whole numbers का जो closure property under addition क्या हो गया? satisfied हो गया. ठीक है, तो अब हम जाते हैं इसी closure property का subtraction. under subtraction, तो under subtraction में क्या होगा एक बार देखो कि satisfy होगा या नहीं होगा, वो हमें देखना है. क्लियर? सपोज फॉर एग्जांपल मैं यही ले रहा हूँ 2 - 3 that is equals to -1. ओके, प्लस इनटू माइनस. सो यहाँ पर आपको बाद में आएगा इस माइनस के बारे में. तो मगर यहाँ पर है ना, जब लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर निकालेंगे तो आपको नेगेटिव नंबर्स आएंगे. ये नेगेटिव नंबर्स आप बाद में सीखोगे. मगर हमने क्या देखा था, होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं नहीं. तो इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन क्या हुआ? सेटिस्फाई नहीं हुआ. आया समझ में आपको? तो इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सेटिस्फाई हुआ, यानी टू होल नंबर्स को लिया और ऐड किया तो होल नंबर ही आएगा. ओके, बट व्हेन वी आर डूइंग द सब्ट्रैक्शन, इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग टू होल नंबर्स, इट मे नॉट बी अ sometimes it may not be a whole number. Okay, so the negative numbers will be get. So that's why under subtraction it will not be satisfied. Clear? Now we will go with the multiplication. Under multiplication, so whether it will be satisfied or not we will see. Under multiplication, so under multiplication it will be satisfied or not we will see. So for example I am taking same this example only 2 and 3. So 2 is a whole number, multiply 3 is also whole number, 2 3 are 6, it is also whole number. So therefore whole numbers under multiplication it will be satisfied. ये हो गया satisfy हो गया. ठीक है, next under division. under division, so under division में देखेंगे same example 2 divided by 3. तो आपका आंसर क्या आएगा? तो 2 divided by 3 इसका कैंसिलेशन नहीं होगा, इतना ही. तो अंडर एडिशन ये सेटिस्फाई, अंडर डिवीजन ये सेटिस्फाई हुआ होल नंबर, इट विल नॉट बी सेटिस्फाई. व्हाई? बिकॉज़ while explaining the definition I already informed you, in whole numbers what will not be included? Fractions not included, decimals not included, negative numbers not included. Therefore it is a fraction will not be included in whole numbers. Therefore closure property under division it will not be satisfied, only under addition and multiplication satisfied. तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, when we take two numbers and the result also will get the same number, that means its properties will be satisfied. So under whole numbers only addition and multiplication only satisfied, subtraction and division will not be satisfied. Okay.
property, commutative property. So what's the commutative property means? So you are interchanging the numbers, okay? Communicating, that means commutative property, that means you are interchanging, okay? जैसे कि हम फोन में बात करते हैं तो एक दूसरे का बातें क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं. जैसे कि मेरे बातें कौन सुनेगा, अदर पर्सन, और उसके बातें मैं सुनूंगा. इन द सेम मैनर, सो वी आर इंटरचेंजिंग द नंबर्स. So while we are interchanging the numbers also, if we get the same result, that means commutative property will be satisfied. And if you are not getting the same answer while you are interchanging the numbers, so what? It will not be satisfied. So therefore first I will go with the commutative property under addition. So under addition means a plus b is equals to b plus a. तो मैंने यहाँ पर इंटरचेंज किया. जैसे कि सपोज मैंने 2 plus 3 that is equals to 3 plus 2, तो इसका आंसर क्या होगा, सेम होगा. 2 plus 3 क्या, 5, and 3 plus 2 क्या, 5. तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इन होल नंबर्स सेटिस्फाई हुआ. क्लियर, समझ में आया अभी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन. सो वैसे ही अभी हम देखते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन में a minus b is equals to b minus a, तो वहां पर है ना कभी भी सेम नहीं होगा. तो इसके लिए वैल्यूज वहां पर LHS is equals to RHS कभी भी नहीं होगा. इसके लिए होल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं होगा. जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं हुआ था, वैसे सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा. क्लियर, अभी हम मूव होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन में. तो अंडर मल्टीप्लिकेशन में a into b is equals to b into a. जैसे कि मैंने किया 2 into 3 that is equals to 3 into 2. आंसर क्या होगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, सेम होगा. So therefore commutative property under multiplication will be satisfied. Clear. और अंडर डिविजन्स में भी satisfy नहीं होगा क्योंकि fractions आ जाएंगे कभी कभी. इसके लिए होल नंबर्स में तो फ्रैक्शंस नहीं होंगे, तो इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन होल नंबर्स, सो अंडर डिवीजन इट विल नॉट बी satisfied. Okay, okay, now associative property. Okay, we will do the now associative property. Associate means group, एक जगह ग्रुप हो जाना, associate, combined. So when यहाँ पर हम क्या करेंगे, we will combine the numbers. Okay, 2 को हम एट ए टाइम हम क्या लेंगे, कितने नंबर्स लेंगे, 2 लेंगे. ठीक है, ग्रुप बनाएंगे, फिर जो नंबर्स है उसको लेफ्ट साइड पे रख देंगे, फिर बाद में हम ऐड करेंगे. तो इसके लिए इसका नाम क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सेम जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन डिवीजन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसमें भी सेटिस्फाई नहीं होंगे. तो इसमें भी सेम जैसे उसमें जो सेटिस्फाई हुए हैं वही यहाँ पर सेटिस्फाई होंगे. So in commutative property and closure property, what type of will be satisfied means under addition and under multiplication will be satisfied. In the same manner in associative property also under addition and under multiplication will be satisfied. So how can we read this means bracket of a plus b plus c that is equals to a plus bracket of b plus c, that is bracket of a into b into c that is equals to a into bracket of b into c. इस तरह से है. तो मैं एक बार एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा ताकि ये सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा. देखते हैं. जैसे 2 plus 3 लिया है यहाँ पे और plus 4 लिया है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 2 आ जाएगा और 3 and 4 क्या हो जाएगा, अंदर चले जाएंगे. ठीक है, सो 2 plus 3 5, 5 plus 4, नेक्स्ट 2, 3 plus 4 7, ओके, 5 plus 4 9 and 2 plus 7 9. तो ये अंडर इन ऑल नंबर्स associative property under addition will be satisfied. Clear. Now we will go with the multiplication. Same example I am taking, that is 2 into 3 into 4 that is equals to 2 into 3 into 4. Clear. So now 2 3 are 6 into 4, 2 into 4 3 are 12, 6 4 are 24, 12 2 are 24. So then under multiplication and under addition associative property satisfied in whole numbers. So आपको मैंने 3 प्रॉपर्टीज बताया है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये तीनों के 3 प्रॉपर्टी में ओनली अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन यही सेटिस्फाई होगा और बाकी के कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होंगे. ठीक है, ओके. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाउ. सो इन दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव बोला मींस you are distributing the number to the others. कैसे देखो, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे a into b plus c.
इस तरह से है। तो a मल्टीप्लाई जो है दो नंबर है ब्रैकेट के अंदर, तो जब मल्टीप्लाई रहेगा ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। तो इसके लिए सो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, आया समझ में? a इंटू बी प्लस सी को हम a इंटू बी प्लस a इंटू सी इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आप इसमें ना नंबर्स लेके अगर आपने किया तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। एलएचएस के समय पे भी यहाँ पर भी सेम आएगा और आरएचएस में भी सेम आएगा। तो मैं अभी एग्जांपल करके दिखाऊंगा। तो उससे पहले इसको दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, जैसे मींस डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन को अंडर ओवर एडिशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके लिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो जैसे कि 2 इंटू 3 प्लस 4 ये मैंने लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर a क्या लिया था हमने 2, तो 2 इंटू, और b क्या लिया था 3 प्लस, एंड a क्या है 2 एंड c क्या है 4। तो अभी हमें करना है, देखो 2 इंटू 3 प्लस 4 हाउ मच 7। ओके 2 7 जा वो बाद में करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 6 प्लस 8 कितना 14। आया आपका LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये इसको ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो अभी हम ये कहाँ यूज करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल मूव विद द एक्सरसाइज 2.2। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द एक्सरसाइज 2.2। नाउ वी विल गो विद द एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में फर्स्ट बिट में आपको एक सम करवा रहा हूँ, बाकी का होमवर्क, एंड सेकंड बिट में आपको मैं 2 करवाऊंगा, बाकी के आपके होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है ऐड द फॉलोइंग नंबर्स बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। ऐसा आपको अरेंज करना है कि इसका आंसर जल्दी से आ जाए। तो आपको जल्दी आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 ये वाला अगर आप लेके आओगे, जीरोस जितने आएंगे तो उतना आपको जल्दी से एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा। तो जैसे कि 8 और 3 को लेंगे तो लास्ट में 0 आएगा नहीं, और 7 और 3 को लेंगे तो 0 आ सकता है। इसके लिए आपको क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्यूशन लिख के 837 प्लस 363 प्लस 208 इस तरह से अरेंजमेंट करवाओ, ठीक है। इन दोनों का ऐड करेंगे पहले, ठीक है। तो बाद में ऐड करके देखेंगे 837 एंड 363 0, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 0, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 1 12। तो आपका आंसर क्या आ गया 1200 प्लस 208, ठीक है। अगर पहले आप ये दोनों ऐड करते ना, एडिशन लेट होता, जल्दी जल्दी नहीं होता, क्योंकि इसमें 10 10 हम इजी से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट 1208, इसको है ना बिना रफ के भी यूज करते हैं। सो 0 के प्लेस में क्या आ जाएगा 8, 0 0 0, 2 प्लस 2 4 और 1 सेम एज दिस हो गया। तो इजी वे में जल्दी जल्दी बिना रफ यूज किए आपको फटाफट हो जाना चाहिए, इसके लिए हम इस वे में कर सकते हैं। सो बाकी का सेकंड सम भी आप ऐसा अरेंजमेंट करो जैसे कि जीरोस आए और आपका एडिशन जल्दी से हो जाए। और अब हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पे। सो देखो मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको जीरोस लेंगे तो इजीली कर सकते हैं। सो यहाँ पर किससे अगर आपको जीरोस आ जाएंगे दोनों में से, 52 जा कितना 52 जा 100, तो हम यहाँ पर अरेंजमेंट कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पर 2 into 50 ब्रैकेट में ले लेंगे इंटू 1768, इसको ब्रैकेट इधर लिख लेंगे। नेक्स्ट 52 जा 100 इंटू 1768, ठीक है। 1768 बन जा 1768 और बाकी के 2 जीरो सेम एज दिस। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएगा, यानी कोई भी नंबर अगर आप लेंगे तो इसको यहाँ पर कुछ भी हो तो उसके साथ 1 से मल्टीप्लाई कर लेने का, और इसमें कितने जीरो से लास्ट में अपने जीरोस लगा देने का, तो आपका आंसर हो जाता है। पहले अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करता ना तो बहुत टाइम वेस्ट होता। तो मैंने विदाउट रफ यूज करके मैंने 52 से 100 लिख दिया, और 100 को क्या किया सीधा इस नंबर को लिख के इसके लास्ट में मैंने 2 जीरो लगा दिए। तो इस वे से आपका इजी से हो सकता है। और ऐसे कुछ नंबर्स के आपको याद रखने हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने से हंड्रेड्स थाउजेंड्स आ सकते हैं, ठीक है। तो नीचे के सम में भी वही हुआ, देखो। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे क्या
125 इंटू 8 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 40 का और 25 का एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 125 इंटू 8 क्या है 1000 आता है अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो। नेक्स्ट 25 4 जा 100 और 0 का 0, ठीक है। तो अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें कितने जीरो से 3, इसमें कितने जीरो से 3, 1 1 जा 1 सेम एज दिस आएगा और जीरोस कितने आएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपका ये हो गया आपका 10 lakhs। तो इस तरह से आपको अरेंज करके सम्स को करना है, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं थर्ड बिट पे। तो थर्ड बिट पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किए, तो यहाँ पर भी भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको सॉल्व करना है। तो वहां पर हमने यहाँ पर ऑलरेडी स्प्लिट किया हुआ है, इसे स्प्लिट किया हुआ उसको हम क्या करना है बैक जाना है। जैसे देखो a इंटू बी a इंटू सी a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो हमें क्या करना है, ये a को क्या करना है बाहर निकाल देना है, क्या करना है बाहर निकालना है। या टू यहाँ पर स्प्लिट किया हुआ उसको क्या करेंगे हम, यू हैव टू गो टू दी बैक पोजीशन, जैसे कि हम पहले करते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो उस पोजीशन में आपको जाना है। तो देखो पहले क्वेश्चन को वन टाइम रिपीट करोगे आप, प्लस 297 इंटू 3, ठीक है। सो 297 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और अंदर क्या रहेगा 17 प्लस भी रहेगा और साथ में 3 भी रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट अभी 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3 20, क्लियर। सो अभी सीधा क्या करोगे, रफ यूज नहीं करना है, सीधा हो सकता है आपका 2 7 जा 14 1 रिमेनिंग, 2 9 जा 18 18 प्लस 1 19 1 रिमेनिंग, 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 और ये 0 का 0 आया आंसर समझ में। इस तरह से आपको करना है। अभी सेम ये करते हैं, इसको कैसे करना है, और बाकी के बीच के वाले सम्स क्या है आपके होमवर्क है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट मेथड में आपको इसके लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ सेम नहीं लग रहा है कुछ निकालने के लिए, तो हमें इसे स्प्लिट करना होगा। कैसे करना हो ध्यान दो, 3 8 4 5 को मैंने कुछ नहीं किया, सेम रहने दिया, और इसको भी कुछ नहीं किया। एंड 7 6 9 इंटू 5 को 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 5 से 25, तो मैं 25 को क्या कर रहा हूँ स्प्लिट कर रहा हूँ। तो 5 इंटू 5 कर सकता हूँ मैं इस तरह से, मैंने कर दिया, और इंटू 280 सेम, क्लियर। ओके नेक्स्ट अभी देखो ये देखो 3 8 4 5। तो अगर आपको क्या करना है अभी नेक्स्ट स्टेप में, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना 7 6 9 इंटू 5 आपका आंसर आएगा 3 8 4 5। सो 3 8 4 5 इंटू 5 इंटू 7 8 2 प्लस 7 6 9 इंटू 5 को हम क्या करेंगे ब्रैकेट में ले लेंगे इंटू 5 इंटू 218, क्लियर। नेक्स्ट देखो 3 8 4 5 इंटू 5 इंटू 7 8 2 प्लस क्या आएगा 3 8 4 5 आएगा, क्या आएगा 3 8 4 5 और 5 का 5 सेम एज इट रहेगा एंड 218 रहेगा। तो अभी आपको क्या पता चल रहा है, 3 8 4 5 सेम है, 3 8 4 5 सेम है, 5 सेम है, 5 सेम है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इन दोनों को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो मैं क्या बाहर निकाल रहा हूँ, C दैट इज 3 8 4 5 इंटू 5 इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 7 8 2, ये 7 8 2 ब्रैकेट में आ जाएगा, क्लियर, प्लस 218 इसमें रहेगा। आया समझ में आपको। देखो मैंने कैसे किया, 5 को मैंने स्प्लिट कर दिया और 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 8 4 5 आया। तो 5 यहाँ पर रहने दिया, सेम एसेस बाकी के सारे सेम है। तो इसमें से मैंने 3 8 4 5 को और 5 को 3 8 4 5 और 5 को मैंने क्या किया बाहर निकाल दिया, और बाकी के 7 8 2 प्लस का प्लस और 218 सेम एसेस है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो कैसे करना है देखो, 5 5 जा 25 2 रिमेनिंग, क्लियर। नेक्स्ट 5 4 जा 20 20 प्लस 2 22 2 रिमेनिंग, ठीक है, 2 रिमेनिंग। नेक्स्ट 5 8 जा 40 40 प्लस 2 42 4 रिमेनिंग, क्लियर। नेक्स्ट 5 3 जा 15 15 प्लस 4 19 आया आंसर। ये यहाँ तक का इसका आंसर आ गया,
नेक्स्ट मल्टीप्लाई सेम, क्लियर। नेक्स्ट 782 एंड 218 आपका आंसर आएगा 1000। अगर आप ऐड करके देखेंगे तो 1000 आएगा। जब 1000 आया तो इजी से आपका आंसर आ जाएगा ना, 19225 1 जा 19225, क्लियर। और इसके कितने जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो यहाँ पर लगा तो आपका आंसर आ गया, क्लियर। इस तरह से आपको करना पड़ेगा, स्टेप वाइज आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं फोर्थ बिट में। फोर्थ बिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो 738 into 103 यहाँ पर आपको यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपको लिखना है भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या करेंगे देखो, इजी वे में मल्टीप्लाई कर सके। सो देयरफॉर 738 into 100 plus 3, इसको मैंने क्या कर दिया 100 plus 3 में स्प्लिट कर दिया। अब ये कैसा है, ये A है और ये B है, ये C है, तो उसका एक्सपेंड फॉर्म क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, A into B plus A into C, है ना। तो इसके लिए 738 into 100 plus 738 into 3, तो 738 into 3, क्लियर। अभी आपको तो ये पता ही है, डायरेक्टली कर दोगे आप 738 0 0, 738 1 जा 738, 2 के 0 2 यहाँ पर लगा दोगे, प्लस नेक्स्ट 3 8 जा 24, 2 रिमेनिंग, 3 3 जा 9, 9 plus 2 11, 1 रिमेनिंग, 3 7 जा 21, 21 plus 1 22। ये आ गया आपका आंसर, क्योंकि 103 से मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल है और 3 से करना इजी है, इसके लिए आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका आंसर इजी से आ जाएगा, ठीक है। सो 0 plus 4 4, 0 plus 1 1, 8 plus 2 0, ठीक है, 1 रिमेनिंग होगा, 2 plus 3 5, 5 plus 1 6 और 7 का 7 सेम एज इट रहेगा। तो आपका आंसर ये हो गया। तो बिना रफ यूज किए ही आपको ये करना है, ठीक है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला को यूज करना है उस कंडीशन को। सो देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द क्वेश्चन टोटली, सी व्हाट the taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. So on Monday how much quantity of petrol he filled, that is 40 liters, understand. Next, the next day he filled the tank with 50 liters of petrol. So another day, that means then tomorrow, next day, how much quantity of petrol he filled in his car, that is 50 liters. Then if the petrol cost 44 per liter, then how much did he pay for both the days? ये आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मंडे को 40 लीटर उसने भरा अपने कार में पेट्रोल, फिर नेक्स्ट डे 50 लीटर पेट्रोल भरा उसने अपने कार में, एंड पर लीटर का कॉस्ट है 44, तो उसने 2 दिन का मिला के पेट्रोल का पैसा कितना वो देगा। तो ये आपको करना है। तो पहले गिवन दैट हमें स्टेटमेंट के साथ करना है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है ना। गिवन दैट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, quantity of petrol filled on Monday is equals to how much, 40 liters, clear. Next, quantity of petrol filled on next day is equals to 50 liters, clear. Next, what is the price of the per liter? Therefore cost of petrol per liter is equals to rupees 44, clear. Now we have to do the cost of petrol paid, comma paid for the 2 days is equals to, so यहाँ पर सीधा हम 40 को 50 को ऐड करके सीधा 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप कैसे यूज करोगे, मींस इस तरह से, दैट इज इक्वल्स टू 44 इनटू ब्रैकेट ऑफ 40 प्लस 50, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर रुपीस का सिंबल डाल दो, क्योंकि हम आंसर जो आएगा रुपीस में आएगा। Therefore 40 plus 50 how much, 90. Therefore rupees 44 into
90. क्लियर? सो अभी मल्टीप्लाई करना है. 4 9 हाउ मच? 36. 3 remaining. Clear? Next 4 9 हाउ मच? 36. 36 plus 3 39. So rupees 396 and 0 जो है 0 यहाँ पर आ जाएगा. Therefore cost of the petrol he will pay for the both the days is equals to how much? Rupees 3960. ये आपका हो गया फोर्थ सम. नेक्स्ट आपका नेक्स्ट सम जो है सिक्स्थ का सम जो है वो आपको खुद को करना है. ये होमवर्क है. सेम इसी तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके सिक्स्थ का सॉल्व करना है. एंड सेवेंथ का क्या है? मैचिंग है. कौन सा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है? वो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन और एडिशन. ये आपको खुद करना है क्योंकि मैंने जैसे एक्सरसाइज 2.2 समझाने से पहले मैंने प्रॉपर्टी समझाए थे, तो उसको ध्यान में रख के आप मैचिंग कर देना. नाउ वी विल मूव फॉर द एक्सरसाइज 2.3. और ये एक्सरसाइज 2.3 भी आपका पूरा होमवर्क है क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है. फर्स्ट बिट, थर्ड बिट एंड फोर्थ बिट तक ही करना है. फिफ्थ बिट नहीं करना है आपको, उसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है. तो आपको एक्सरसाइज 2.3 में फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का एंड फोर्थ का करना है. ये आपका होमवर्क है. तो आप जब सॉल्यूशन पीडीएफ आएगा आपका, तो जब देखते समय आपको लिखते समय इसके समझ में आ जाएगा. ओके, सो अप टू your chapter number 2 whole numbers is completed. So in next video class we will start with the third chapter. Okay, stay safe and stay at home. Thank you.